آج ہم بھی موج میں ہیں، وجد میں آ کے پڑھیں، ایسے پڑھیں، عشق میں یا کہارو یا کہارو یا کہارو، ساری زندگی جھولیاں اٹھا کے دعا کریں گے۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایسا لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں پیر صاحب، جو اپنی مثال آپ ہے، جتنے بھی معاندین ہوں گے، حاسدین ہوں گے، شریر لوگ ہوں گے، شر انگیز ہوں گے اور مخالفین ہوں گے، انشاءاللہ تعالی یہ ننگی تلوار بن کر برسے گا، اور اس ننگی تلوار کو برستا ہوا آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دو طریقے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دونوں طریقوں کی اجازت ہے، اور وہ جنات جادو کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر وہ بھی کرتے ہیں۔ چاہے جنات آپ کے دشمن ہیں، شیاطین آپ کے دشمن ہیں، انسان، شریر انسان آپ کے دشمن ہیں، انسانوں کا روپ میں بھی کئی بھیڑیے ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر ایسے معاملات ہیں، پیسے چوری ہوتے ہیں، کپڑے کٹتے ہیں، ایک لشکر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو تمام کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہادی سبل رحمت کل، مرشد کائنات، محسن مخلوقات، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ آج ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے اور ان سے ملتے جلتے متعدد سوالات ہیں۔ حاسدین، معاندین، مخالفین، ان کا کوئی مستقل توڑ اور علاج بتایا جائے۔ دیکھیں، حاسدین و معاندین، مخالفین، ہر انسان کے اس کے رتبے کے، اس کی شان کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ جتنی زیادہ عزت عطا فرماتا ہے، اتنے زیادہ پھر اس کے حاسدین، معاندین اور مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بڑا رتبہ عطا کرے، شان و شوکت عطا کرے اور پھر آپ کا کوئی دشمن نہ ہو۔ دشمن ہوتے ہیں، ان کا علاج بھی ہوتا ہے، اور دشمن انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنات میں بھی دشمن ہوتے ہیں، اور جنات کئی کیٹیگری کے ہیں، ان کی کتنی طبقات ہیں، اور کئی جنات کے مرحلے ہیں۔ ایک ایسے جنات کی قسم ہے جو اڑتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے ہیں، اڑتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، اور دوسرے جنات ایسے ہیں جو انسانوں کی طرح شکلیں بناتے ہیں اور ملتے ہیں اور زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، مختلف شکلوں میں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ایک قسم جنات کی مولانا صاحب وہ ایسی ہے جو زمین کے اوپر رینگنے والے جو کیڑے مکوڑے ہیں نا، اور چلنے والے درندے، ان کی شکلیں بنا لیتے ہیں، کتے کی شکل بنا لی، کوے کی، چیل کی شکل بنا لی، سانپ کی، بچھو کی شکل بنا لی، اور اس طرح مختلف وہ شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور شیاطین کے مختلف، جنات کے مختلف آگے کام ہیں۔ یہ گھروں میں آگ بھی لگاتے ہیں، یہ گھروں کے اندر پخانہ پھینک دیتے ہیں، گندگی پھینک دیتے ہیں، اور اچھا بھلا گھر ہوتا ہے، اس کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ گھر کا جینا حرام کر دیتے ہیں، کپڑوں کو کاٹتے ہیں، پیسے چوری کر لیتے ہیں، ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ چھپا دیے، یا وہاں سے اٹھا کے کسی اور جگہ پھینک دیے، گھر والوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اور گھر کے اندر لڑائیاں ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گھر کے افراد شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
एक दूसरे के ऊपर उनको बदगुमानियां होना शुरू हो जाती हैं, और जिस घर के अंदर शक अपनी जगह बना ले वो घर का अमन और सुकून तबाह हो जाता है। लिहाजा घरों के अंदर ये मुख्तलिफ तरह के इस तरह की वारदातें करते हैं। लगे हुए ताले, कुंडियां लगे हुए तालों को, सेफों को, अलमारियों को, बक्सों के अंदर से ये चोरियां कर लेते हैं। ये शयातीन करते क्या हैं? ये शयातीन उस घर के अमन को, सुकून को, इंसानी जिंदगी को तबाह बर्बाद करते हैं। और ये शयातीन उनके घर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पत्थर फेंकते हैं, मट्टी की ईंटें और ढेले फेंकते हैं, उन घरों के अंदर अलमारियों में पड़े हुए कपड़ों को काटते हैं, सुराख कर देते हैं, कपड़े नए होते हैं सुराख कर देते हैं उनको, और इसी तरह घर के अफराद के दरमियान में लड़ाइयां डालते हैं और फिर उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के हमले करते हैं। मैं आगे चल के आपको यह भी बताऊंगा। और इसी तरह के इंसानों के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो लोगों के घरों के अंदर लड़ाइयां डालते हैं, लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, हमला करते हैं और बगैर किसी वजह के इंसानी जिंदगी को बेसुकून करते हैं। ऐसे इंसानों में रिश्तेदारों में भी कई लोग मौजूद होते हैं और आपके इर्द गिर्द के माहौल के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं, और दुनियावी जिंदगी के अंदर भी। और अगर आप किसी एतबार से बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली के अंदर हैं तो पढ़े लिखे लोगों के अंदर पढ़े लिखे लोगों का पढ़ा लिखा तरीका होता है कि वो उस तरीके के साथ आपके साथ ज्यादती करते हैं। आप देख लें कई कितने पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन वो पढ़ा लिखा फ्रॉड करते हैं। आम बंदा छोटा सा फ्रॉड करता है, पढ़ा लिखा बंदा ज्यादा हाई लेवल का फ्रॉड करता है। आजकल ऐसे फ्रॉड भी हैं कि वो बैंकों के अंदर आपके अकाउंट को चुरा लेते हैं और आपके ऐसे ऐसे अंदाज से वो फ्रॉड और धोखा करते हैं, इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा भी होता है। और इंसानी जिंदगी के अंदर जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के मकबूल लोग होते हैं, अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे होते हैं, अल्लाह के महबूब के गुलाम होते हैं, जितने अच्छे और नेक लोग होते हैं उतने उनके साथ फिर उस तरह के जो शयातीन के चेले हैं और शयातीन के आलाकार हैं, क्योंकि शैतान बाजुकात डायरेक्ट और बाजुकात इनडायरेक्ट इंसानी जिंदगी पे वार करता है और उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी करता है। और शयातीन की कौम जो है, शयातीन की जुर्रियत जो है, वो भी इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के अंदर उनके खून के अंदर शामिल होकर उनसे शैतानी आमाल करवाते हैं, शैतानी अमल करवाते हैं। ये शैतानी अमल है किसी के साथ हसद करना, और ये शिर्क भी है। ये एक तरह का शिर्क भी है कि अल्लाह ताला ने एक बंदे को नेमतों से नवाजा है और नेमतें अता फरमाने वाला अल्लाह है, और अल्लाह ताला की अता के ऊपर आप इतराज करते हैं। अल्लाह ताला की अता के ऊपर उसके पास अच्छा घर क्यों है, उसके पास अच्छी गाड़ी क्यों है, उसके रेपुटेशन अच्छी क्यों है, वो अच्छा खा पी क्यों रहा है, वो लिबास अच्छा क्यों पहन रहा है, उसके पास जिंदगी की आसाइशें क्यों है। भाई ये सारी क्यों जो सवाल है ना आपका, ये गलत है। वो अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाने वाला है, और दुनियावी आसाइशें याद रखना ये उस वक्त नेमत है जब तक बंदे की लो अल्लाह के साथ लगी हो और वो दुनियादारी से कमाए और दीन पे खर्च करे और दीन की मदद करे। हदीस मुबारका का मफहूम है, या कुरान दीन सीखने वाले बनो, कुरान सीखने वाले बनो, या सिखाने वाले बनो, या इल्मे दीन सुनने वाले बन जाओ, या इनके साथ इमदाद करने वाले बन जाओ। पांचवे ना बनना वरना हलाक हो जाओगे। ये चारों में से कोई एक बन जाओ, या दीन सीखो या सिखाओ, या उनकी सोबत में बैठो, या उनके साथ तामन करो। तो इस तरह जब ऐसे मामलात होते हैं तो आप किसी नेक अमल के जरिए नेक अमल करते हैं तो आपको उस नेक अमल से रोक दिया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से जिसके ऊपर एहसान अजीम होता है, अल्लाह उनको दीनी दुनियावी नेमतों से माला माल फरमाता है। और जो बंदा दुनियावी मामलात में दुनियावी कामों में कमाता है और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता है, अल्लाह के बंदों की खिदमत करता है, अल्लाह के दीन की खिदमत करता है, तो फिर क्या होता है कि उसका वो माल रहमानी हो जाता है,
اور جس نے دنیا داری سے کمایا اور دنیا داری میں لگایا، تو ایسے لوگوں کے لیے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ادی لانت دنیا تائیں تے ساری دنیا داراں ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ ادی لانت دنیا تائیں تے ساری دنیا دار۔ ایک بندہ وہ ہے، وہ سارے کا سارا اس کا فوکس ہی دنیا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کماتا ہے، دین کی خدمت بھی کرتا ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے۔ اور شیاطین کے جو چیلے ہیں اور شیطانی اہلکار ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے بندوں کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے دن رات نئے سے نیا منصوبہ گھڑتے، نیا سے نیا کوئی فارمولہ جھاڑتے ہیں، نیا سے نیا کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اب اس میں زیادہ پڑھے لکھے ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی رومی کشمیر آپ فرماتے ہیں پڑھنے دا تو مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار ستار کہاوے روڑ دے وے دودھ کڑیا، کہ بعض اوقات معلم الملکوت کو بھی رب تعالیٰ لعنت کا توق اس کے گلے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ کس بات کا تکبر اور کس بات کا غرور؟ اگر اللہ کی مخلوق کا بھلا نہیں، اور سب سے بڑی انسانیت یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر رحم دلی کا جذبہ ہو، محبت ہو مخلوق خدا کے لیے، رحم دلی کا جذبہ ہو اس کے اندر۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر وہ شیطان کا اہلکار ہے، اور شیطان کا ہتھیار ہے حسد کرنا۔ تو حاسدین کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، معاندین کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور مخالفین بھی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ظاہری طاقت نہیں ہے، ظاہری قوت نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس ظاہری قوت نہیں، ظاہری طاقت نہیں، تو آپ کے پاس روحانی طاقت تو ہے نا، ایمانی طاقت تو ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے دربار میں دعا مانگے۔ مومن کا بندہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ دنیا کے کوئی سنتا ہے تو سن لے، نہیں سنتا نہ سنے، اس کی مرضی، لیکن پروردگار عالم اپنے بندے کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ وہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر میرے بندو مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو آپ ان مخالفین پر، ان کے پاس جدید قسم کی طاقت ہے، جدید قسم کے ان کے پاس اختیارات ہیں، وہ قوت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ سمجھیں۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے بندے ہیں، اور یہ جو 70 ماؤں والی حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے نا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میں کہتا ہوں یہ 70 ماؤں والا محاورہ ہے۔ ایسے محاورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے آگے 70 ماؤں کی محبت بھی کچھ نہیں۔ ساری کائنات بھی کی مائیں بھی اکٹھی ہو کے ایک بچے سے پیار کریں، میرا ایمان اور یقین ہے اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کے ساتھ محبت فرماتا ہے، کیونکہ آپ شہکار ہیں، اللہ کا بنایا ہوا شہکار ہے۔ تو اللہ رب العزت جتنی محبت اپنے بندوں سے فرماتا ہے، ہاں آپ حق پر ہوں نہ حق نہ ہوں، آپ حق پر ہوں، اور ہر ایک کے اندر کا ضمیر بتا دیتا ہے کہ تم حق پہ ہو یا نہیں ہو۔ تو آپ اگر حق کے اوپر ہیں، انشاءاللہ کوئی دنیا کا افسر، کوئی دنیا کا بندہ، کوئی دوست یار، ملنے والا، مولانا صاحب، پیر صاحب، کوئی بھی سنتا ہے تو سنے، نہیں سنتا نہ سنے، اللہ ہے نا، اللہ ہے نا۔ اور یہ تو فیضان نقش بند ہے کہ غار سور کے اندر محبوب کائنات، مرشد کائنات، سید کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے یار، یار غار، یار مزار، حضرت تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، میرے یار ابو بکر غم نہ کر، اللہ اپنے ساتھ ہے۔ تو اللہ اپنے ساتھ ہے، یہ فیضان ہے، اللہ اپنے ساتھ ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، جو حق پہ ہے
اللہ اس کے ساتھ ہے تو اللہ کی مدد اس کو مل کے رہتی ہے، دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن بندہ حق پہ کھڑا ہو، حق پہ رہے، اس کا اندر اس کا ضمیر اس کو بتا دیتا ہے کہ بندے تو جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ دنیا یاد رکھیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت عطا فرمائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تو جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے جھوٹی تسلیاں دے دے کر بھی کوئی شان عطا نہیں کر سکتا، کیونکہ عزت اور شان عطا فرمانے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، جو آئے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایسا لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں پیر صاحب، قرآن مجید کا فرقان حمید برہان رشید کا ایسا طاقتور لفظ جو اپنی مثال آپ ہے، جتنے بھی معاندین ہوں گے، حاسدین ہوں گے، شریر لوگ ہوں گے، شر انگیز ہوں گے اور مخالفین ہوں گے، انشاءاللہ تعالی یہ ننگی تلوار بن کر برسے گا۔ یہ قرآنی وظیفہ ان کے اوپر، ان دشمنوں کے اوپر، معاندین کے اوپر، حاسدین کے اوپر ننگی تلوار بن کے، بے نیام تلوار بن کر ان کے اوپر برسے گا، اور اس ننگی تلوار کو برستا ہوا آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ ایسا میں آج آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں اتنا زبردست طاقتور ہے، اس کو کرنے کے دو طریقے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دونوں طریقوں کی اجازت ہے، کمال کا ہے۔ میں بتا رہا تھا جس طرح انسانوں کے اندر انسانوں کے دشمن ہے، اس طرح انسان کے دشمن شیاطین بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور وہ جنات جادو کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر وہ بھی کرتے ہیں، اور انسانوں کے اوپر تو بالخصوص وہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کی ضد جن ہے، بشر کی ضد جن ہے۔ بعض اوقات چلتے پھرتے آپ ایسا سوال بھی سنتے ہوں گے، بشر کی ضد نور، تو مولانا صاحب بشر کی ضد نور نہیں ہے، بشر کی ضد جن ہے، جن و بشر ضد ہے۔ تو آپ کو ایسا میں وظیفہ بتا رہا ہوں، چاہے جنات آپ کے دشمن ہیں، شیاطین آپ کے دشمن ہیں، انسان شریر انسان آپ کے دشمن ہیں، انسانوں کا روپ میں بھی کئی بھیڑیے ہیں۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر آپ فرماتے ہیں، پیڈاں وانگ حلیم دسیاویں، اوے نیت دیا بگیاڑا، فرشتیاں وانگوں صورت تیری، تیرے اندر دیو جاڑا، اندر دیو جاڑا، اندر ساری کی ساری جنگل بیابان، بنجر دھرتی، لیکن باہر بڑی حلیم طبیعت، بڑی ایسے جھکی ہوئی ہے گردن، لیکن اندر تکبر ہی تکبر، گھمنڈ ہی گھمنڈ، مخلوق خدا کو تکلیف دینے کے نئے نئے طریقے، منصوبے، پروپوگنڈے، کسی کا گھر کس طرح اجاڑنا ہے، کسی بہن بھائی کو تکلیف کس طرح دینی ہے، ماتھے پہ اتنا بڑا چوڑا محراب، لیکن دل کے اندر اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے درویش گزرے، انہوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں ایتھے رحم نہیں وچ نمازیاں تے کئی آجی کہر خدا، ایتھے صبر نہیں اندر صوفیاں گل تسبیح مکر ریا، ایتھے عدل نہیں کر دے بادشاہ کئی حاکم کہر خدا، کئیاں دنیا ٹھگن واسطے متھے لے کسا، ایتھے ویکھ نہ پلی داڑیاں کئی اندروں نہیں صفا۔ کسی نے پوچھنا ہو نا یہ کیا کہاں کس نے لکھا ہے، تو وہ ایک بزرگ گزرے ہیں فیصل آباد کے، انہوں نے لکھا بھولا پنچھی، اس کے اندر انہوں نے یہ اشعار لکھے ہیں، تو اڑ جا بھولیا پنچھیا اپنی جان بچا، ایتھے کر کر پھائیاں لگیاں تینوں لین گے پھسا، تیریاں نکیاں کر کے بوٹیاں تے وچ ہانڈی دین گے پا، تیرا پن کباب بنان گے اجے ویلائی اڑ جا، تیرے مگر شکاری موت دے اے بیٹھے تاک لگا، تو اڑ جا بھولیا پنچھیا تے اپنی جان بچا، ایتھے کر کر پھائیاں لگیاں تینوں لین گے اے پھسا، ایتھے چاڑن چکھا خلیل نوں دے گل وچ پا کے پھا،
ਇੱਥੇ ਅੰਨਿਆ ਕਰਨ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਰਵਾ, ਇੱਥੇ ਦੰਦ ਤੁੜਾ ਲੈ ਆਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਲਓ ਲਾਕ ਲਮਾ, ਨਾਲੇ ਮਾਰਿਆ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੁਲ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਵਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਬਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਖੰਜਰ ਹੇਠ ਲਟਾ। ਤੂੰ ਉੱਡ ਜਾ ਭੋਲਿਆ ਪੰਛੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ, ਇੱਥੇ ਧਰਕਲ ਵਤਰਾ ਚੀਰ ਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹਾਜੀ ਕਹਿਰ ਖੁਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਸੂਫੀਆਂ ਗੱਲ ਤਸਬੀਹ ਮਕਰ ਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਲਮਾ ਨਾ ਜ਼ੁਹਦ ਹੈ ਵਿੱਚ ਫੁਕਰਾ, ਕਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਥੇ ਲੈ ਕਸਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਦਾੜੀਆਂ कई अंदरों नहीं सफा। ये उन्होंने हमारे हालात का नक्शा खींचा है। तू उड़ जा भोलिया पंछिया ते अपनी जान बचा, तेरा लम्मा सफर मुसाफरा, तू कलियां पैना है राह। इत्थे गाने बन्नन वालियां कई तकदियां रह गईयां राह, इत्थे गाने बन्नन वालियां कई तकदियां रह गईयां राह, तेरा लम्मा सफर मुसाफरा, तू कलियां पैना है राह। ते इथों चल हाफिज हुण चलिए, ए दुनिया ही बेवफा। तो ऐसे यहां पर होता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग जिनको आप बहुत अच्छा समझते हैं, उन्हीं के अंदर वो छुपे होते हैं जो करीब से वार करते हैं। तो इनसे बचने के लिए आज बहुत खूबसूरत साहबजादा वाला शान हजरत अल्लामा हाफिज पीर मोहम्मद अरसलान रजा रिजवी सैफी मुजद्ददी साहब ज़ीदा मजदहू, उनकी आज पुरजोर ख्वाहिश पर यह दर्स हो रहा है। उन्होंने ये सवाल मेरे सामने रखा कि मेहरबानी फरमाएं, ये वजीफा जरूर बताएं कि हासिदीन मुआनिदीन मुखालिफीन पर कैसे छुटकारा पाया जाए, इनसे निजात कैसे हासिल की जाए। तो मैंने जरूरी समझा कि आपको फिर ऐसा मुअस्सर तरीन तोहफा आज दूं जो सारी जिंदगी के लिए काफी हो जाए। और ये ताकतवर इतना है, इतना ताकतवर है, सारी जिंदगी झोलियां उठा के दुआ करेंगे। आज हम भी मौज में हैं। इतना कमाल का ये वजीफा मैं बता रहा हूं, बहुत शानदार वजीफा है, कुरानी वजीफा। लेकिन इसके करने के दो तरीके हैं। अगर आपके घर के अंदर जिन्नात इस तरह के वार चला रहे हैं, जिन्नात जादू कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही जादू कर कौन रहा है, समझ नहीं आ रही, जिन्नात जाहिर भी नहीं हो रहे, और घर के अंदर नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, पैसे चोरी, कपड़े चोरी, जेवर चोरी, कपड़ों की कटिंग हो रही है, और घर के अंदर बर्तन टूट रहे हैं, अचानक से गिर जाते हैं, बिजली की इलेक्ट्रॉनिक चीजें अचानक से आपकी फ्यूज हो जाती हैं, जल जाती हैं, घर में किसी कोने में आग लग गई, आज उस अलमारी में आग लग गई, आज उधर आग लग गई। इस तरह के बाजुकात बिजली का स्पार्क होता है तो आग लग जाती, बाजुकात किसी ने आग लगाई तो लग गई, बाजुकात चूल्हा फटा, सिलेंडर फटा, आग लग गई। लेकिन इसके अलावा भी आग लगने के वाकयात जो खुफिया हैं वो जिन्नात आग लगाते हैं, शयातीन, क्योंकि शैतान पैदा ही आग तो है। शैतान का मादा तख्लीक क्या है? आग। और इंसान का मादा तख्लीक क्या है? मट्टी। तो ये आग से पैदा हुआ है, तो ये आग भड़काता है, और जिस इंसान के अंदर चला जाए उसका गुस्सा भड़काता है, और वो गुस्से में फिर क्या करता है? अपने रिश्तेदारों के ऊपर जादू चलाता है, अपने रिश्तेदारों का नुकसान करता है। कारोबार बांध दिया, किसी का रिश्ता बांध दिया, किसी की तरक्की बांध दी, किसी की दुकान बांध दी, किसी की फैक्ट्री बांध दी, किसी के कारखाने पे तावीज फेंक दिए, उधर जादू कर करके चीजें फेंक दी, गुड्डे बना दिए, उनके पुतले बना दिए, उनके कब्रिस्तानों के अंदर कफन समेत उनको दफन कर दिया, और उनके हाथ पांव गुड्डे बनाकर बांध दिए, कील ठोंक दिए, सुइयां चबो दी, अंडों के अंदर सुइयां डाल दी, नींबू के अंदर सुइयां डाल दी, लेमन के अंदर सुइयां डाल दी, तस्वीरों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर। मैं ये शाहदरा लाहौर के अंदर मशहूर जगह है, एक सूफी साहब हैं, सूफी शहजाद साहब, नक्शबंदी हैं, बड़े दरवेश आदमी हैं, नमाजी हैं, मुत्तकी हैं। उनके सगे भाई ने उनकी और उनके बच्चों की तस्वीरों के ऊपर जादू किए, और इतनी बड़ी हांडी चढ़ा दी, और नीचे आग जलाता है, और अपने बच्चों को, फिर ये उल्टे भी होते हैं,
उल्टे भी होते हैं। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, जो किसी का बुरा करता है फिर अल्लाह की तरफ से उसका भी बुरा हो जाता है, तो जो किसी का भला करता है मेरा रब उसका भी भला फरमा देता है। इसलिए हमारा यही मंशूर और मकसूद है, कर भला हो भला, होता है भले का भला। भला करते जाओ, भला करते जाओ, भला करते जाओ। आपकी भलाई को कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देखेगा। पीर साहब भला करते जाओ, कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है ना। अल्लाह देख रहा है कि मेरे बंदे की नीयत क्या है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। दुनिया जो कुछ गलत कहती है कह दे, तेरा दिल सच्चा है, साफ है, अल्लाह को पता है। अल्लाह नीयतों को जानता है। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह उसका बदला देता है। बुरा करोगे बुरा होगा, सच अच्छा करोगे अच्छा होगा। कैसे होगा? जहां पर आपके वहम गुमान की परवाज खत्म हो जाए, वहां से काम शुरू होता है। अल्लाह ऐसे अच्छा करेगा, अल्लाह ऐसे बचाएगा, अल्लाह ऐसे तुझे खिला के भी अल्लाह दुनिया को दिखाएगा, तुझे पिला के भी अल्लाह दिखाएगा, तुझे पहना के भी अल्लाह दिखाएगा, तुझे बसा के भी अल्लाह दिखाएगा, बल्कि तुम्हारी नस्लों को भी अल्लाह बसा देगा अगर तुमने अल्लाह की मखलूक के साथ भला किया तो। ये बात याद रखें। तो कोई जिन या कोई इंसान शरीर आपका घर दर और दौलत का दुश्मन है, तो फिर उसके लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद का ये लफ्ज, ऐसा लफ्ज जिसको आप या कहारो पढ़ेंगे, ये लफ्ज कहार कुरान मजीद फुरकान हमीद का लफ्ज है। तो कहार को या कहारो जब भी पढ़ेंगे तो ये शयातीन, शरीर, जादूगर, बदकार, सफाक, जालिम, जादूगर, जिन्नात, उनके ऊपर एक नंगी तलवार साबित होगा। एक नंगी तलवार साबित होगा। आपके ऊपर जादू किसी ने कर दिया है और उसको तोड़ने पर, उसकी काट पर कोई मामला नहीं मिल रहा, कोई जिन, कोई इंसान आपका घर दर दौलत का दुश्मन बन गया, आप चाहते हो उससे छुटकारा मिल जाए, तो फिर हरगिज हरगिज आप परेशान ना हो। आप परेशान ना हो, आप फौरन इस इसम को, इसमें या कहार को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बना ले, अपना मामूल बना ले। या कहारो, या कहारो। और पढ़ना कैसे है? पानी एक ले ले, एक टब के अंदर पानी ले ले, उसके अंदर अपने पांव रखें और पानी के अंदर पांव रखें, और यहां पर आपने अपने ज़हन के अंदर ये नियत करनी है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुएं पे जाते थे ना, मदीना मुनव्वरा शरीफ में एक कुआं था, तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी के उस बाग के अंदर, आज वो जगह मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर शामिल हो गई है। बाबे हमीदी की तरफ से जाएं तो फर्श के अंदर भी वो निशान मौजूद है। वहां कुएं थे, पानी मीठा और ठंडा था। दो जहानों के वाली सैयदे कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरकार वहां जाकर तशरीफ ले जाते तो कुएं के अंदर अपने पांव डाल देते और पानी में डबो देते अपने पांव को, और उसका सुकून मिलता। पानी ऊपर उठता, पानी उछल उछल के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के बोसे लेने के लिए ना, पानी उछल उछल के वजद में आ जाता पानी। जब वजद में इंसान होता है ना, तो फिर क्या होता है? छलांगे लगाता है, तड़पता है, फड़कता है, मचलता है। आज वहां फवारे लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अब एक वक्त ये भी आ गया है कि वहां पर वो शावर फवारे लगे हुए हैं, और उस बात को, उस निशानी को उन्होंने वो जारी रखा हुआ है कि यहां पर सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे। आप पानी के अंदर अपने पांव को डबो दीजिए, फिर या कहारों की 1100 तादाद जो है वो आप पढ़े 1100 मरतबा, यानी 11 तस्बीहां। या कहारो, या कहारो, या कहारो, इसको आपने पढ़ना है और परेशान नहीं होना। अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना ऐसे पढ़े, वजदानी हालत में, वजद में आके पढ़े,
वजद में आके पढ़े, ऐसे पढ़े, इश्क में, मोहब्बत में, मस्ती में, कैफो सरूर में पढ़े, बेचैनी से, बेकरारी से पढ़े। या कहारो, या कहारो, या कहारो 1100 मरतबा पढ़े और डूब कर, इश्क में डूब कर, वो कहते हैं ना लुत्फ आया डूबने का जितनी गहराई मिली। आप या कहारो, सारी ताकतों के मालिक, मैं बेताकत हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं नातवा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मौला सारी ताकतों का मालिक तू है, कुव्वतों का मालिक तू है। ऐ अल्लाह मेरे दुश्मन मुझ पर गालिब हैं, या अल्लाह मुखालिफीन, हासिदीन, मुआनिदीन मेरे ऊपर तूफान बनकर चढ़े हुए हैं। मौला मैं इनके साथ निबट नहीं सकता, मेरे पास ताकत नहीं, कुव्वत नहीं। ऐ अल्लाह इनका फैसला तू ही फरमाने वाला है। आप पढ़े, या कहारो पढ़े, ऐसा कमाल मिलेगा थोड़े अरसे में, ऐसा कमाल मिलेगा और जरूर मिलेगा। ये खास खास अमल या कहारो उन अमाल में से है जो फौरन कबूल हो जाते हैं। या कहारो 41 यौम तक अगर आपने इसको कर लिया ना, 41 यौम तक एक लश्कर आपके साथ खड़ा हो जाएगा, गैबी लश्कर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और जो शख्स 1100 मरतबा पानी में पांव डबो कर इसको पढ़ता रहे, 11 तस्बीहें हो गई, अब पांव बाहर निकाल ले और इस पानी को किसी सब्जे में डाल दे, इस पानी को किसी सब्जे में डाल दे, फिर दूसरे दिन नया पानी ले ले, फिर उसके अंदर पांव डबोए। वक्त और जमान की कोई कैद नहीं है, यानी इशा के बाद किया है, मगरिब के बाद किया है, फजर के बाद किया है, जोहर के बाद किया है। और अगर अल्लाह आपको वक्त दे दे तो आप इसको इशा के बाद ही करें, लेकिन इसको करते हुए दरमियान में गुफ्तगू नहीं करनी, आपने कोई बातचीत नहीं करनी, खामोशी के साथ इस अमल को करना है। 11 तस्बीहां यानी 1100 मरतबा या कहारों का विर्द करना है। और इसका दूसरा तरीका, आपने कागज के ऊपर 41 मरतबा या कहारो लिखना है। कितनी मरतबा? 41 मरतबा, 41 टाइम्स या कहारो। लेकिन लिखना इस तरह है, या अलग, अलिफ अलग, या और काफ अलग, हा अलग, अलिफ अलग, रा अलग, या कहारो। ये स्क्रीन के ऊपर आप मुलाहिजा फरमा ले, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है या कहारो। आप कागज के ऊपर, सफेद कागज के ऊपर लकीरों के बगैर हो, आप ब्लैक स्याही के साथ इसको लिख सकते हैं, और अगर जाफरान मुयस्सर हो तो उसके साथ लिखे, अगर नहीं तो आप इसको स्याही के साथ भी लिख सकते हैं। अब या कहारों को आपने 41 मरतबा लिखना है। 41 मरतबा जब आपने लिख लिया तो 41 मरतबा, ये दूसरा तरीका बता रहा हूं, 41 मरतबा रोजाना आपने इसको पढ़ना है। ये दूसरा तरीका है। या कहारो कागज के ऊपर लिखा गया, अब इस कागज को आप वहां रखते जहां आग लगती है। आपके घर के अंदर ऐसे मामलात हैं, पैसे चोरी होते हैं, आपके घर के अंदर ऐसे मामलात हैं, ऐसे पखाने की बदबू आती है, पखाने की बदबू आती है, गंदगी की बदबू आती है, कपड़े कटते हैं, किसी जगह भी किसी किस्म का कोई नुकसान होता है, तो आप वहां पर इनको जुदा जुदा हरफों को लिखकर वहां उस कागज को, उस तावीज को, उस नक्श को वहां रख दे। और एक अमल मैंने और भी बताया हुआ, हमारे चैनल पे मौजूद है, इस्माए असहाबे कहफ वाला, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके अंदर अस्माए असहाबे कहफ की मैंने उसके अंदर उसके असरार और रमूज बताए हैं, और मैंने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है। गुज़श्ता दिनों में हमारे मदरसे के अंदर, आस्ताने पे बच्चों का मदरसा है, लड़कों का, तलबा कराम का, तो वहां आग लगी। तो अब क्लासेस थी वहां पे, तो छुट्टियां थी, तो आग लग गई और आग भड़की, और इतनी आग भड़की के सैकड़ों लोगों ने उसको देखा। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में अर्ज गुजार होने लगा
आग भड़क रही थी और मैं अपने परवरदिगार के सामने दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मैंने तेरे औलिया अल्लाह से सुना और सही सनद के साथ सुना और वो फैज लिया कि इसमाए असहाबे कहफ जिस जगह पर हो वहां पर आग नुकसान नहीं करती। तो मैंने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया और फिर मैंने इसमाए असहाबे कहफ को पढ़ा। इलाही बेहुरमती अमलीखा मकसलमीना कशफू ततजरकत यूनुस कशाफत यूनुस यूनुस बूस व इस्मो कल्बहुम कितमीर व अल्लाह कसदुस सबील व मिन हजाय। अल्लाह पाक ने उसकी बरकत से, मैं कहता हूं ये तो इसमाए असहाबे कहफ की बरकत है, ये तो या कहारो बता रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला का नाम है। और कुरान की बरकत कितनी होंगी, या कहारों की बरकत कितनी होंगी। ये असहाबे कहफ तो अल्लाह के बंदे हैं, उनके नाम है, इसके अंदर इतनी तासीर अल्लाह ने रखी है, तो अल्लाह के नाम में तासीर कितनी होगी। जो कुल कायनात का खालिक, मालिक और राजिक है, पूरी कायनात को बनाने वाला है, उस अल्लाह के नाम में कितनी तासीर होगी। अल्लाह अकबर। तो आप काली स्याही जो घुलने वाली है, या कहारों को 41 मरतबा पढ़कर जादू सदा, जिनके ऊपर काला इल्म हो चुका है, जादू हो चुका है, काले शयातीन, काले जिन्नात और इस तरह के मसाइल जिनके ऊपर हैं, वो पानी के अंदर तावीज डाल दे, इजाजत दे रहा हूं, लेकिन आप कमेंट के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे महबूब की जात पर दरूद पाक जरूर भेजिएगा और एक मरतबा दरूद पाक लिख कर कमेंट में जरूर सेंड कर दीजिएगा। अगर आप कर सके तो बहुत बड़ा सवाब है। दरूद पाक है, जितने लोग भी दुरूद शरीफ को पढ़ते रहेंगे उनको भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा, और जो कोई दरूद पाक पर निगाह करेगा उसका भी सवाब मिलेगा। तो इसके दूसरा तरीका जो बता रहा हूं कि 41 मरतबा कागज के ऊपर लिखें और उस कागज को आप फोल्ड करें, तय करें। इसको आप अपने तकिए के अंदर भी डाल सकते हैं, तकिए के नीचे भी रख सकते हैं, तकिए के अंदर सिलाई खोल के स्टिचिंग खोलें और उसके अंदर डाल दें, यह भी तरीका है। और तीसरा तरीका इसका कि आप इसको पानी में घोल कर अपने घर के अंदर छींटे भी लगाएं चारों अतराफ में, और जादू ज़दा, सेहर ज़दा, जिन्नात ज़दा, आसेब ज़दा इंसान को, मरीज को ये तावीज वाला पानी पिलाएं भी। जादू का पुराने से पुराना मारा हुआ मरीज और जिन्नात का सताया हुआ, नजरे बद का सताया हुआ, जिस तरह का भी नजरे बद के नाग का डसा हुआ भी होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला उसको शिफा बख्श देगा। और जिन्नात जहां आग लगा देते हैं वहां कपड़े के ऊपर आप 41 मरतबा या कहारो ये लिखकर अपने घर के अंदर कपड़ों वाली अलमारी में रख दे, इंशाअल्लाह कपड़ों को आग नहीं लगेगी। जिस जगह कपड़े काटते हैं ये तावीज 41 मरतबा लिखकर तैयार करके आप अलमारी के अंदर लगा दे, इंशाअल्लाह वहां आग नहीं लगेगी। खून के छींटे आते हैं, खून के लोथड़े आते हैं, या गंदी चीजों के निशान पड़ जाते हैं, या घरों में जगह जगह पखाना, पेशाब और मुख्तलिफ तरह की आवाजें आती हैं, गंदगी आती है, या घर भर को सोने नहीं दिया जाता, पूरे का पूरा घर डिस्टर्ब और सोने नहीं दिया जाता। एक मुश्किल से निकलते हैं दूसरी मुश्किल में फंस जाते हैं, एक परेशानी से निकलते हैं दूसरी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, एक बीमारी उतरती है दूसरी बीमारी शुरू, और एक डॉक्टर के पास गया दूसरा तैयार है, दूसरा गया तीसरा तैयार है, एक मुसीबत से निकले दूसरी मुसीबत में गिर गए, आसमान से गिरे खजूर में अटके। अगर ऐसे ऐसे मामलात आपके साथ होते हैं तो आप या कहारों का विर्द, इसका वजीफा 41 मरतबा रोजाना हर नमाज के साथ शुरू कर दे। बेहम्दिही ताला, अल्लाह ताला के करम से ये असरात आपके घर से दफा हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और अगर किसी मरीज को पानी पिलाया है तो इंशाअल्लाह शिफा याबी हो जाएगी। और एक और अनोखी बात, जिन्नात भी एक दूसरे पर जादू करते हैं तो वो इंसानों के ऊपर भी जादू करते हैं और इंसानों को नजरे बद भी लगाते हैं। तो आप या कहारों का एक नक्श कागज पे तैयार करें, काली स्याही के साथ तैयार कर लें, मार्कर के साथ, या स्याही घोल के तैयार करें, कलम के साथ ज्यादा बेहतर है। अगर आप इसको तैयार करके अपने घर के अंदर लगाएं तो इंशाअल्लाह
जादुई वार आपके ऊपर असर नहीं करेंगे और जिन्नात आपके घर से भाग जाएंगे और जिन्नात का उतारा हो जाएगा। और अगर फिर भी मामलात काबू में ना आए तो आप नंबर देख रहे हैं, इन नंबर्स पर आप राब्ता करके रहनुमाई ले सकते हैं। कर भला हो भला होता है भले का भला।